Dear students, today we are going to start chapter 2 Matrices Miscellaneous Exercise 2A. Question number 8. In question number 8, what you have to find? Find the inverse of matrix A, which is given as cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. So it is a matrix of order 3 by 3, which you have to find inverse of that matrix by using elementary row transformations and second elementary column transformations. So you have to find inverse of the matrix by two methods, elementary row and elementary column. Two transformations are there for the same question. So first we consider, since A equals cos theta sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. Therefore determinant of A, or you can say det A, read as det A or determinant of A, equals determinant of cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. So first you have to expand the determinant and find the value of determinant of A. What is determinant of A? Cos theta means first row and first column get cancelled. Using cos theta here, cos theta we have to write, and then first row and first column get cancelled. Using cos theta into 1, which is cos theta, minus 0 into 0, that is 0. Minus of minus sin theta. So minus of minus sin theta becomes what? Plus sin theta. Plus sin theta. Now this column and first row get cancelled. Second column and first row get cancelled. Now remaining element sin theta into 1, which is sin theta, minus 0 into 0 becomes 0. Plus 0 into something is 0. So no need to write the bracket again here. No need to write the bracket again here. Plus 0 into something 0. तो कोई ज़रूरत नहीं, एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Now cos theta into cos theta, cos square theta minus 0, meaningless. Plus sin theta into sin theta, sin square theta here, and here minus 0 is meaningless. So cos square theta plus sin square theta, you know very well from the previous standard or from 9th, 10th standard. Cos square theta plus sin square theta is an identity which is equal to 1. If it is 1, what does it mean? Means det A is not equal to 0. If det A is not equal to 0, so what does it mean? It is what? It is non-singular matrix. It is a non-singular matrix. Therefore, A inverse exists. So you have to write only is not equal to 1 is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. So this calculation for both the methods, this one, since A equal to this, then det A equal to this, and then determinant of A equal to this much, and expanded form A inverse exists. So this method for both the methods, this calculation for both the methods for elementary row transformation as well as elementary column transformation for both the methods. तो ये इतना पार्ट जो फर्स्ट के ठीक ऊपर लिखा गया है, ये इतना पार्ट दोनों के लिए कॉमन है. मान लो सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पूछते हैं तो भी स्टार्टिंग से ही सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करोगे और कंटिन्यू करते जाओगे. और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पूछते हैं तो भी ये इतना करना ही पड़ेगा. तो ये फर्स्ट मेथड, और क्योंकि देखो यहाँ पर टू मेथड्स दिया ना, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों मेथड के लिए इतना पार्ट कॉमन है, तो ये अलग से इतना सॉल्व कर दिया. ये दोनों के लिए हो गया, फॉर एलिमेंट्री एंड फॉर कॉलम transformation. Now see elementary transformation. First one for elementary row transformation, since A into A inverse equal to I. Substituting the value of matrix A. What is matrix A? This is matrix A. Cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1 into A inverse equal to matrix identity matrix of order 3 by 3, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये लिख लिया. तो ये तो अपने से लिखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ए ये इसका वैल्यू है गिवन इनटू ए इनवर्स एज इट इज, बिकॉज वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स.
तो डियर स्टूडेंट्स, अभी करना क्या है, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से एकदम हंसते हंसते सॉल्व करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम खुश होकर के सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं लेना है। दिस इज वेरी वेरी इजी मेथड एंड वेरी इजी क्वेश्चन। जितना ही बोलो एकदम इजी क्वेश्चन है उतना ही कम है, एकदम इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, इसको वन, या मैं पूरे मैट्रिक्स का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सबसे में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना डालना है, इसको पूरे को आइडेंटिटी मीन्स जैसा राइट हैंड साइड में दिख रहा है वैसा यहाँ लेफ्ट में दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिटी बनाना है होल मैट्रिक्स को, और यहाँ पर अपना इसको आइडेंटिटी कन्वर्ट करने के टाइम पर मीन्स हम लोग R1 R2 R3 का यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, ये मैट्रिक्स अपना चाहे ट्रिगो में हो जाए, नंबर्स में हो जाए, जो भी होगा वो देखेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले टारगेट अपना क्या है, कन्वर्ट इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अप्लाइंग R1 चेंजेस cos थीटा इंटू R1 प्लस साइन थीटा इंटू R2, cos थीटा इंटू R1 प्लस साइन थीटा इंटू R2। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो हमें यहाँ वन लाना है, वन लाने के लिए अगर हमें यहाँ cos थीटा इंटू cos थीटा आता है तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ आता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, देखो साइन थीटा का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, R2 में, ये है अपना R2, दिस इज रो 2, और R1 कौन सा है, दिस इज R1, ये R1 है। तो R1 को हम लोग cos थीटा से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय cos थीटा इन R1 एंड बाय sin थीटा इन R2 वी गेट सिंपलेस्ट फॉर्म, व्हाट वी गेट उसको देखो। तो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, ऐसे ऐड करोगे ना, देखो R1 तो इसको पूरे को cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे और इसको sin थीटा से, और इन दोनों को ऐड करते हुए जो रिजल्ट आएगा यहाँ लिखोगे। तो देखो cos स्क्वायर थीटा हुआ ये cos इंटू कॉस, प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बिकम्स 1 विच इज एन आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा होगा, और यहाँ प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और यहाँ कॉस थीटा का, तो ये माइनस है और ये प्लस, दोनों इक्वल है और अपोजिट इन साइन, तो दोनों इकट होकर के क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ देखो cos थीटा इंटू जीरो जीरो, प्लस साइन थीटा इंटू जीरो जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो। ये R1 को हमने चेंज कर लिया, R1 अपना मिल गया 1 0 0, इजिली मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब R2 को देखो, R2 रिमेन्स अनचेंज्ड मीन्स एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है, कॉपी कर लेना है, और थर्ड रो 0 0 1 वो भी एज इट इज लिखना है, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो चेंज कहाँ पर किया था, R1 चेंजेस सिर्फ R1 में चेंज किया, न कि R2 एंड R3 में। तो अब ये राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस देने वाला है उसको भी देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस देगा, देखो cos थीटा इंटू 1 cos थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा, तो 0 हो जाएगा, तो ओनली cos थीटा कम्स हियर, 0 इंटू कॉस 0 प्लस 1 इंटू साइन, तो साइन थीटा बचेगा, तो cos थीटा यहाँ पर आया और यहाँ साइन थीटा, और ये दोनों ही जीरो हैं, जैसे इस साइड दोनों जीरो थे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 0 0, R2 0 1 0 एज इट इज एंड R3 0 0 1 एज इट इज, दोनों में सेम है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर जैसे थे हम लोग वैसा ही उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो अपना R1 में चेंज हुआ, R1 चेंज होके क्या हो गया 1 0 0, और यहाँ cos थीटा sin थीटा 0। देखो R2 R3 सेम है, यहाँ भी R2 R3 सेम है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना है, हमें 1 0 0 तो मिल गया, हमारा टारगेट था ऐसा कॉलम वाइज, तो ऑटोमेटिकली 1 0 0 आ गए, कोई बात नहीं, अपना अच्छा ही है, अपने को बनाना भी था। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है 1, अगर ये 1 आता है तो हम लोग 1 इसको क्या करेंगे, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1, तब ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि अपना टारगेट है कॉलम वाइज, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो कॉलम वाइज टारगेट रखते हैं 1 0 0, और जब भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो रो वाइज टारगेट होता है अपना, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद हमें 1 बनाने के लिए अब इसको सीरियसली थिंकिंग कर लो क्या करना चाहिए। जैसे साइन थीटा है, अब साइन थीटा को 1 लाने के लिए हमारे पास अवेलेबल वैल्यूज क्या क्या है उसको देखो। अवेलेबल वैल्यूज ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 0। तो अगर हम कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करना चाहें तो फिर वो 1 भी चेंज हो सकता है या अदर और डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है साइन थीटा को 1 करने के लिए हम साइन थीटा से R2 को डिवाइड कर देते हैं। क्या करोगे, डिवाइडिंग बाई साइन थीटा इन R2,
मीन्स रो टू को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड ही सेम ऑपरेशन यूज करना है। तो डिवाइड कर देते हैं। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है। तो उसको क्या लिखोगे, अप्लाइंग आर टू चेंजेस 1/sin थीटा इंटू R2। ये मैट्रिक्स की लैंग्वेज में इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद R2 चेंजेस 1/sin थीटा इंटू R2 मीन्स डिवाइडिंग बाई साइन थीटा। तो 100 एज इट इज फर्स्ट रो, सेकंड रो साइन अपॉन साइन 1, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, 0/sin 0 हो गया। और थर्ड रो में 001 एज इट इज इंटू ए इनवर्स इक्वल्स फर्स्ट रो एज इट इज, तो कॉस थीटा साइन थीटा 0। सेकंड रो को हमने डिवाइड किया है तो 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम 1/sin थीटा इज व्हाट, 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा and 0/sin थीटा is 0. So this is 0, 0, 1. Now अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, ये 1 एलिमेंट को 0 बनाना है। तो ये 1 - 1 0 होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि R1 - R2 कर दोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर पूरा मैट्रिक्स रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ इसको 0 बनाना है, तो हमें यहाँ से R2 - R1 जाना है। तो क्या लिखोगे, R2 चेंजेस R2 - R1, R2 चेंजेस R2 - R1, ये लिख लेते हैं। तो देखो, तो फर्स्ट रो एज इट इज 100, सेकंड रो 1 - 1 0, कॉट थीटा -0 कॉट थीटा, 0 - 0 0, थर्ड रो 001 एज इट इज लिखना है इंटू ए इनवर्स इक्वल कॉस थीटा, फर्स्ट रो एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा 0, वो हमने लिख लिया सेम। अभी ये 0 अपॉन व्हाट, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, 0 माइनस कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सिंप्लीफाई करोगे तो अपने को मिलेगा कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, COT, कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। कैसे मिलेगा उसको देख लो, साइन थीटा ये लिखोगे पहले कोसेक माइनस साइन, तो कोसेक को क्या चेंज करो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है, ध्यान से सुनो, लिसन वेरी केयरफुल्ली। तो 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इज 1 - sin² थीटा/sin थीटा। तो न्यूमरेटर में हो गया 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा किसके इक्वल होता है, cos² थीटा। तो cos²थीटा/sin थीटा हो गया। तो cos² थीटा को लिख लो cos थीटा इंटू कॉस थीटा/sin थीटा। तो एक cos थीटा अपना रिमेनिंग है, और सेकंड वाले टर्म में cos/sin होता है cot थीटा। क्लियर, चलो वेरी गुड। नाउ 0 - 0 इट इज 0, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो थर्ड रो एज इट इज 0, 0, 1, 0, 0, 1, क्योंकि हमने थर्ड रो के लिए कोई ऑपरेशन नहीं लिया है। जो सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा सिर्फ चेंज उसमें ही होता है, और किसी में चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया अपना 1 0 0 0 cot थीटा 0 0 0 1 मीन्स वी सी दैट लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स इज converted into an identity matrix but one element is remaining। ये सिर्फ cot थीटा नहीं होता, यहाँ पर 1 चाहिए अपने को, क्या चाहिए 1। इसको 1 बनाने के लिए हम लोग R2 को एक बार और डिवाइड करते हैं, किससे, cot थीटा से। तो चलो डिवाइडिंग रो 2 बाई cot थीटा, तो क्या लिखोगे, अप्लाइंग R2 चेंजेस 1/cot थीटा इंटू R2। और यहाँ समझ भी लो कि cot थीटा से डिवाइड जैसे ही करोगे ये 1 हो जाएगा, और इधर ये 0 है ये 0 है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन्स अपना एलिमेंट हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा पूरा। और यहाँ माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को फिर से रिकन्वर्ट इन कॉस अपॉन साइन, तो कॉस कॉस कट हो गया और साइन ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन थीटा बचेगा। ये कॉट थीटा कट हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, 0 अपॉन कॉट थीटा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यही जो एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, यही अपना अगले मैट्रिक्स में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि कॉट अपॉन कॉट 1 आ गया, इंटू ए इनवर्स इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो में अपना क्या लेना है, माइनस साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि कॉस कॉस कट हो गया, कॉस साइन में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, रफ वर्क पे करके देख सकते हो। और यहाँ कॉट कॉट कैंसिल हुआ, रिमेनिंग टर्म कॉस थीटा ओनली, हियर इट इज 0। थर्ड रो विल हैव नो चेंज, 0 0 1, ठीक है। तो नाउ दिस मैट्रिक्स कन्वर्टेड इन आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में हो गया, क्या लिखोगे, आई इंटू ए इनवर्स दैट इज दिस। तो देयरफॉर आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू सेम मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लो, कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, ये हो गया। अब इसके बाद आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स ओनली, उसका रीजन यहाँ पर देख लो, आई ए इनवर्स इज ए इनवर्स, ये रीजन देना है, ठीक है। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल
cos थीटा sin थीटा 0, माइनस sin थीटा cos थीटा 0, 0 0 1। तो ये रहा अपना इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, मीन्स ए इनवर्स इक्वल टू दिस मच बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। किससे हुआ ये? रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है, क्योंकि सेकंड मेथड में पूछा है ना कि सेम मैट्रिक्स को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना कि जब भी अपने पास कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो हमें अपना फर्स्ट स्टेप चेंज करना होगा। उसके लिए ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई लिखना है। क्या लिखोगे? इफ वी अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सो वी राइट हियर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। ठीक है, देखो इसके पहले क्या लिखा गया था, इसके पहले सिंस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जब भी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो ये, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी अपना ये फुल सोल्यूशन यहाँ तक ये ऐड करोगे और फिर इसके बाद अपना ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूएशन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेम क्वेश्चन, तो सिंस ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, अभी ए इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई, जैसा हमने प्रीवियस मेथड में लिया अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन में, सेम टू सेम यहाँ पर भी लेना है, लेकिन एक ही ध्यान देना है, ए इनवर्स वी राइट फर्स्ट। ठीक है, तो ए इनवर्स, अब हमें दिस मैट्रिक्स मीन्स ये ए मैट्रिक्स ए को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग C1 C2 एंड C3। और उसका जब हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। ठीक है, तो सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी यूज करोगे, तो रो और कॉलम दोनों के लिए मेथड है। उसके बाद हमारा जो चेंजेस होगा वो रो वाइज दिखेगा, ऐसा जो चेंजेस होगा वो रो वाइज आएगा। तो हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो चलो हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, और हमें सबसे पहले यहाँ 1 लाना है। तो हम सबसे पहले 1 लाने के लिए क्या करना है, उसी के बारे में आइडियाज़ निकालते हैं। तो फिर से वही आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी 1 लाने के लिए, कि इसे हम डिवाइड करके 1 तो ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसके लिए हमें आइडेंटिटी यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने cos थीटा से डिवाइड क्यों नहीं किया, वो भी मैं रीज़न बता देता हूँ कि इफ़ वी डिवाइड बाय cos थीटा इन द फर्स्ट रो, तो क्वेश्चन विल बी लेंदी, डिफिकल्ट। इसके लिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम आइडेंटिटी की तरफ ले जाएंगे कि इसको cos इंटू कॉस और यहाँ पर साइन इंटू साइन। लेकिन ये ध्यान देना कि यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो क्या करोगे, अब ये ध्यान देना है हमारे आइडेंटिटी में क्या है, प्लस। तो जब हम लोग एक माइनस और लेंगे अपनी तरफ से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो यही चीज़ इसमें ध्यान देना और बाकी कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अप्लाइंग C1 चेंजेस C1 इंटू कॉस थीटा, मीन्स ये कॉलम 1 इस बार ऐसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस C2 इंटू साइन थीटा, C1 इंटू कॉस माइनस C2 इंटू साइन, ये मल्टीप्लाई करो। तो देखो कॉस इंटू कॉस और माइनस माइनस प्लस, साइन इंटू साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। अब यहाँ देखो साइन इंटू कॉस होगा और यहाँ माइनस साइन इंटू कॉस, तो दोनों कट होकर के क्या हो जाएगा, 0। और ये दोनों ही 0 है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो नो इफेक्ट, दिस विल बी 0। तो फर्स्ट कॉलम इज 1 0 0, ये हो गया। सेकंड कॉलम एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं होगा। थर्ड कॉलम एज इट इज। और राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है, अब वो ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 0, तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, यहाँ लिख लिए। 0 इंटू कॉस 0 हो गया, माइनस साइन थीटा इंटू 1, तो सिर्फ माइनस साइन थीटा बचेगा। और दोनों ही 0 हैं तो नो इफेक्ट, 0 लिख लेते हैं। सेकंड कॉलम 0 1 0 एज इट इज, 0 0 1 थर्ड कॉलम एज इट इज। तो हमें मिल गया ए इनवर्स इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, राइट। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत केयरफुली सॉल्व कर लो, इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो C2, अब हमें ये C2 को चेंज करके यहाँ पर क्या लाना चाहते हैं हम, इसको पहले सबसे पहले क्या बना लेते हैं, 1। ये 1 बन जाएगा तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो इसको 1 बनाने के लिए अब हम लोग
क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम 2 को साइन थीटा से या माइनस साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस साइन थीटा से डिवाइड करने का बेनिफिट क्या होगा, ये +1 होगा, दैट इज 1 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अप्लाइंग C2 चेंजेस -1/sin θ इंटू C2, ये लिख लो। तो देयरफॉर A इनवर्स इंटू फर्स्ट कॉलम एज इट इज, जैसा यहाँ पर है देखो 1 0 0 1 0 0 सेम लिखना है, ओके। -sin θ अपॉन -sin θ 1, cos θ अपॉन -sin θ माइनस cot θ, 0 अपॉन -sin θ 0। ये हो गया सेकंड कॉलम का चेंजिंग। थर्ड कॉलम नो चेंज, 0 0 1 था, 0 0 1 यहाँ भी लिखो। राइट हैंड साइड फर्स्ट कॉलम एज इट इज, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, जैसे लिखना है सेम। यहाँ पर है 0 1 0, तो ये -1 अपॉन साइन थीटा यहाँ पर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ये चेंज होके हमने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया माइनस कोसेक। और थर्ड कॉलम में नो चेंज, 0 0 1, ये हो गया अपना। अब इसके बाद क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर एक माइनस कॉट थीटा अभी रह जाता है, क्योंकि ये 1 तो हो गया। 1 होने के बाद हमें क्या करना है, वो चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि 1 हो गया, उसके बाद क्या करें, इसको हमें बनाना है 0, क्योंकि 1 0 0 ऐसा माइनस करना है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, C2 माइनस C1, जैसे हम लोगों ने रो ट्रांसफॉर्मेशन में किया था R2 माइनस R1, वैसे ही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, C2 माइनस C1। तो अप्लाइंग C2 चेंजेज C2 माइनस C1, देयरफॉर A इनवर्स इनटू फर्स्ट कॉलम एज इट इज, नो चेंज। देखो 1 माइनस 1 0, माइनस cot थीटा माइनस 0, माइनस cot थीटा 0 माइनस 0 0। C3 नो चेंज एज इट इज, इक्वल टू फर्स्ट कॉलम एज इट इज, यहाँ पर लिखना है सेम टू सेम, cos थीटा माइनस साइन थीटा 0। फिर यहाँ पर 0 माइनस cos थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। तो माइनस कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा को सॉल्व करोगे तो देखो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन में भी आया था अपना, राइट। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, cos थीटा इंटू कॉट थीटा, पॉजिटिव था, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है पहले, तो हम लोग माइनस को कॉमन कर लेंगे बाहर, तो आएगा माइनस cos थीटा इंटू कॉट थीटा, सेम एक्सप्लेनेशन। और ये 0 माइनस 0 0। थर्ड कॉलम नो चेंज एज इट इज यहाँ पर लिखना है। तो ये नाउ वी सी दैट इन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज कन्वर्टेड बट ओनली माइनस cot थीटा रिमेनिंग, ऐसा वहाँ पर भी था रो ट्रांसफॉर्मेशन में भी, तो सेम यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम लोग C2 को क्या करते हैं, माइनस cot थीटा से डिवाइड कर देते हैं, किसको, C2 को, ये कॉलम 2। तो C2 चेंजेस C2 इंटू -1 अपॉन cot थीटा, क्या है, cot थीटा, COT, cot थीटा। तो देयरफॉर A इनवर्स इंटू 1 0 0 0 1 0, अब देखो माइनस cot अपॉन माइनस cot 1, बाकी एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, सब सेम है, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड में फर्स्ट कॉलम विल हैव नो चेंज, इन द सेकंड कॉलम माइनस cos थीटा अपॉन माइनस cot थीटा, तो माइनस माइनस तो पहला काम प्लस हो जाएगा, और cot थीटा को cos अपॉन साइन लिखोगे, cos cos कैंसिल, साइन थीटा गोज अप, साइन थीटा, और यहाँ cot थीटा कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, ओनली cos थीटा रिमेनिंग, 0 अपॉन माइनस cot, दैट इज 0 ओनली। तो ये रहा अपना सेकंड राइट हैंड साइड का सेकंड कॉलम, ये न्यू पोजीशन में आ गया, साइन थीटा cos थीटा 0, और थर्ड कॉलम विल हैव नो चेंज, दैट इज 0 0 1। नाउ A इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मिल गया आइडेंटिटी, तो इट कैन बी रिटन एज A इनवर्स इनटू I इक्वल टू सेम मैट्रिक्स, जैसा प्रीवियस स्टेप में है सेम यहाँ पर भी सेम टू सेम लिख लोगे। क्या क्या लिखना है, cos थीटा साइन थीटा 0, माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1, या कॉलम वाइज लिख लो, चाहे कॉलम वाइज पढ़ो या रो वाइज। तो देयरफॉर A इनवर्स इंटू आई, जैसे I इंटू ए इनवर्स होता था, वैसे ही A इनवर्स इंटू आई, यहाँ पर देखो A इनवर्स इंटू आई इक्वल टू A इनवर्स ओनली। तो देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स cos थीटा साइन थीटा 0, माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। तो वी गेट सेम आंसर, आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करो, या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करो, या एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करो, वी विल गेट सेम आंसर इन ऑल द 3 मेथड्स। तो कोई भी या ट्रिकी मेथड जो शॉर्टकट मेथड्स होते हैं उनको भी अगर ट्राई करोगे तो भी हमें सेम आंसर ही मिलने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा।
तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बट सभी स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस ट्वाइस, मिनिमम 2 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। अगर इसके बाद भी कंफर्म नहीं होता तो प्लीज़ लीव योर डिफिकल्टीज इन द कमेंट बॉक्स। और दूसरी चीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। कोई भी टाइम नहीं लगेगा, जस्ट एक ही सेकंड, 1 सेकंड का भी टाइम लगेगा, जस्ट 1 सेकंड हमारे लिए दे दोगे, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। उसके बाद कंटिन्यूएशन हमारे सभी न्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो ध्यान से देखो। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल 2 3 1 2 and matrix B equal 1 0 3 1. Find matrix AB means A into B मल्टीप्लाई करके लाना है, एंड AB होल इनवर्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन के बाद एक मैट्रिक्स आ जाएगा, सिंगल मैट्रिक्स, फिर उसका हमें इनवर्स भी निकालना है, मीन्स AB होल इनवर्स, दैट इज इनवर्स ऑफ AB। ऑल्सो वेरीफाई दैट AB होल इनवर्स इक्वल्स B इनवर्स A इनवर्स। तो ये आने के बाद अपने को बी इनवर्स भी निकालना है सेपरेटली, ए इनवर्स निकालना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, देखना है इसका आंसर और इन दोनों का आंसर इक्वल है तो हम बोल देंगे कि यस इट इज वेरीफाइड। मीन्स वर्क मेनी है इसमें, लेकिन इजी है बिकॉज ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, इसका 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। अगर ये 3 by 3 में होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता, और 2 बाई डिफिकल्ट मीन्स लेंदी रहता, और यहाँ पर 2 by 2 में है तो ईजिएस्ट मेथड से कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखना है सभी स्टूडेंट को कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर एनी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, इट इज़ ट्रू ऑलवेज एंड इट इज़ अ फार्मूला आल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये कहीं भी यूज कर सकते हो, इट इज़ करेक्ट ऑलवेज। ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। नाउ स्टार्ट योर सोल्यूशन। Since A equals matrix A 2 3 1 2 and matrix B 1 0 3 1, तो व्हाट इज मैट्रिक्स ए बी? तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए इंटू बी फाइंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए एंड बी। तो ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, सबसे मेन डिफिकल्टीज स्टूडेंट को आजकल आ रही है कि हाउ टू मल्टीप्लाई। तो हाउ टू मल्टीप्लाई वैसे तो प्रीवियस ईयर में हो चुका है 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों ने नहीं किया है तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, फिर से बता देता हूँ, फिर से समझो। और ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 3 इसका फर्स्ट रो, इसके फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करोगे, पहले इतना समझो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मीन्स वन एलिमेंट को वन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 इंटू 1 यहाँ पर लिखोगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 यहाँ लिख लिए, ये हो गया फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, ये इसका काम कंप्लीट हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर लिखो सेकंड एलिमेंट में, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, ये वाला 1 है, ठीक है, 3 इंटू 1। अब ये फर्स्ट रो का काम ओवर, क्योंकि अपना यहाँ पर कॉलम कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट रो का काम खत्म हो जाता है। अब इसके बाद सेकंड रो स्टार्ट करते हैं, फिर से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1 इंटू 1 हियर प्लस 2 इंटू 3 हियर, 1 इंटू 0 हियर प्लस 2 इंटू 1 हियर। Now its simplest form, 2 into 1 plus 3 into 3, 2 plus 9, that is 11. 2 into 0 plus 3 into 1, 0 plus 3, that is 3. 1 plus 6, 7, और यहाँ हो जाएगा 0 plus 2, that is 2. So we get AB equals 11 3 7 2. क्या मिला अपने को? मैट्रिक्स AB A इंटू बी इक्वल 11 3 7 2, ये मिल गया। अब हमें इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है, तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि ए बी होल इन्वर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। हो सकता है 0 आ जाए,
तो फिर आगे इन्वर्स मिलेगा ही नहीं, लेकिन वेरीफाई दैट है तो मिलेगा ही। तो हम लोग चेक करेंगे इसको। तो सिंस det AB मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ AB इक्वल डिटर्मिनेंट 11 3 7 2, तो 11 इंटू 2 22 माइनस 7 इंटू 3 21, तो 22 माइनस 21 इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट्स। जैसे चेक करते थे, पहले भी चेक किए थे, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, बी इनवर्स एग्जिस्ट एक्सेट्रा, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हमने ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट्स मिल गया, मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सिंस ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल टू आई, तो ये मेथड से ही देख करके पता लगा लिए होंगे कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं। देखो ए बी जैसे ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, सिमिलरली ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल टू आई, मतलब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना यहाँ पर कि कोई भी स्टूडेंट अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से किसी को डिफिकल्ट लगता है तो यू कैन अप्लाई एडजॉइंट मेथड और बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो, यू विल गेट सेम आंसर। तो एक मेथड मैंने यहाँ पर दे दिया है फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे एडजॉइंट मेथड तो काफ़ी इजी है, तो उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखना जरूरी है, इसलिए हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पर सोल्यूशन दिया। तो सिंस ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल टू आई, substituting the value of matrix AB 11 3 7 2 A into AB whole inverse equal to 1 0 0 1 in the same order, जैसा अपना 2/2 है तो यहाँ भी 2/2 में लिखो। अब इसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है वो देखते हैं कि हमें यहाँ पर 1 लाना है। क्या लाना है? 1। तो हमें 1 कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो अप्लाइंग R1 चेंजेस 2 टाइम्स R1 माइनस 3 टाइम्स R2, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि 2 टाइम्स R1 और 3 टाइम्स R2 ही अप्लाई करना है? देखो, हमें हमारे पास ये R1 है और ये है R2, हमारे पास नंबर्स क्या हैं? 11 और 7। तो 11 और 7 में हम कुछ भी करके, अगर ये 22 माइनस 21 होता है तो यहाँ पर 1 आएगा, राइट? तो 11 इंटू 2 और 7 इंटू 3 यही देगा अपना, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? R1 चेंजेस 2 टाइम्स R1 माइनस 3 टाइम्स R2, मीन्स R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे और अपने मन में रखोगे वो नंबर्स, और R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके वो भी अपने मन में रखोगे और यहाँ माइनस करके R1 में लिखोगे। तो देखो 22 माइनस 21 इज 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6 दैट इज 0। फिर R2 में कोई चेंज नहीं है, 7 2 एज इट इज, इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल्स 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0 दैट इज 2, 2 माइनस 0 2, और यहाँ 0 माइनस 3 इंटू 1, तो 0 माइनस 3 होगा दैट इज माइनस 3, और R2 में कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 एज इट इज। तो देख लो, फिर से देखो, R1 दोनों साइड चेंज हो गया और R2 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक, क्योंकि हमने R1 में ही चेंज अप्लाई किया है, न कि R2 में। नाउ वी गेट 1 0 7 2। तो फिर से अब हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में जो 7 है यहाँ पर हमें क्या बनाना है? 0। इसको 0 बनाने के लिए हमें ये ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, दिस वन, अप्लाइंग R2 चेंजेस R2 माइनस 7 R1, क्योंकि 7 माइनस 7 ही तो 0 देगा ना यहाँ पर। तो देखो 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 7 इंटू 0 2, 2 ही बचेगा, और R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 एज इट इज, इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल्स, यहाँ भी R1 में कोई चेंज नहीं, 2 माइनस 3 एज इट इज, 0 माइनस 2 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस 14 दैट इज माइनस 14, यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस, 7 इंटू 3 21, तो 1 प्लस 21 बिकम्स 22, ये हो गया। तो अपना आ गया 1 0 0 2 ए बी होल इनवर्स इक्वल टू दिस मच। अब क्या करना है? इसे हमें 1 बनाना है, सिर्फ इसको 1 में कन्वर्ट कर देना है। तो अप्लाइंग R2 चेंजेस हाफ इंटू R2, मतलब डिवाइडिंग बाई 2 इन R2 ऑन बोथ साइड्स। तो वी गेट 1 0 एज इट इज, दिस इज 0 अपॉन 2 0, 2 अपॉन 2 1, दिस साइड 2 से डिवाइड करोगे ये माइनस 7 हो गया, और ये 2 से डिवाइड करोगे 11 हो गया, ठीक। तो वी गेट 1 0 0 1 इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 7 11। नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई इंटू ए बी होल इनवर्स अब लिखोगे अगले स्टेप में।
So therefore I into AB whole inverse equals 2 minus 3 minus 7 11. Therefore AB whole inverse equals 2 minus 3 minus 7 11. Since I into AB whole inverse equal to AB whole inverse only. ये A into B AB whole inverse. ठीक, जैसे प्रीवियस स्टेप्स प्रीवियस क्वेश्चंस में रीजन दिए वैसे यहाँ पर भी. ठीक, तो ए बी होल इनवर्स अपने को मिल गया एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब क्या करना है अपने को, अभी बी इनवर्स ए इनवर्स भी निकालना है. तो हम लोग सबसे पहले ए इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, कि सिंस ए इक्वल टू 2 3 1 2 देयरफॉर डेट ए इक्वल टू, ये डायरेक्टली कर लिया 4 माइनस 3 इट इज 1 इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स. सिंस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई मीन्स वी आर अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन अगेन. तो हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो चाहे तो माइनस भी कर सकते थे, लेकिन R1 R2 को इंटरचेंज कर दो, ये ऊपर हो जाएंगे. तो अप्लाइंग R1 इंटरचेंजिंग R2 वी गेट 1 2 हियर एंड 2 3 डाउन, दैट इज हियर इनटू ए इनवर्स. यहाँ पर भी R2 को R1 में लिख देना है, R1 को R2 में लिखना है. तो 0 1 1 0. अब इसके बाद हमें चेंजेस कहाँ पर करने हैं, इसको 0 में से ये पूरे को आइडेंटिटी बना देना है. तो applying R2 changes R2 minus 2R1. This gives first row will have no change, that is 1 2. 2 minus 2 becomes 0. 3 minus 4 becomes minus 1 into A inverse equals 0 1 as it is here. 1 minus 0 1 and 0 minus 2 minus 2. Now we have to convert this as 0. So applying R1 changes R1 plus 2R2. So this gives 1 0 because it is 2 plus 2 1 0 and R2 will have no change, 0 minus 1 as it is. यहाँ पर 0 plus 2 that is 2 and here 1 minus 4 becomes minus 3 and R2 remains unchanged, 1 minus 2 as it is. Now make it as plus 1. So applying R2 changes minus 1 into R2 means R2 को minus 1 से multiply कर देना है पूरे को on both sides. So therefore 1 0 0 1, now minus minus plus into A inverse equal to 2 minus 3 and here minus 1 plus 2. So I A inverse equal to 2 minus 3 minus 1 2. Therefore A inverse equal to 2 minus 3 minus 1 2 and let it be equation number 2. Similarly you can find B inverse from the matrix B. Since B equal to 1 0 3 1, therefore let B equal to 1 into 1 1 minus 0 into 3 minus 0. 1 minus 0 equal to 1 is not equal to 0, therefore B inverse exists. Since B into B inverse equal to I, therefore 1 substituting the value of matrix B 1 0 3 1 into B inverse equal to identity matrix 1 0 0 1. Applying R2 changes R2 minus 3 R1. So this gives 3 minus 3 and here 1 minus 0. So that is 1 0 0 1 into B inverse equal to this one 0 minus 3, it is minus 3 and here 1 minus 0, that is 1, no change here. So we get 1 0 minus 3 1. Now it is converted in identity into an identity matrix, so you can write I into B inverse equal to 1 0 minus 3 1. But I into B inverse equal to I, see this, I into B inverse equal to B inverse, not I. So B inverse, therefore B inverse equal to 1 0 minus 3 1 and let it be equation number 3. अब हमें वेरीफाई करना था कि B इनवर्स A इनवर्स का वैल्यू क्या है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स. तो वी गेट A इनवर्स एंड B इनवर्स बोथ. तो सिंस B इनवर्स इंटू A इनवर्स इक्वल टू, first we write B inverse matrix B inverse and into matrix A inverse from equation 2 and 3. This is value of B inverse and this is A inverse. Again multiplying by same first row to first column. So we get 1 into 2 plus 0 into minus 1. Now first row to second column 1 into minus 3 plus 0 into 2. Now second row to first column here minus 3 into 2 plus 1 into minus 1. Now second row to second column minus 3 into minus 3 plus 1 into 2.
यहाँ पर ये नंबर्स को भी देख सकते हो कि देखो 2 2 -1 1 और यहाँ -3 3 और ये 2 2 सेम है, सिर्फ अपने एलिमेंट को यहाँ एंट्री कर देना है। ठीक है, 1 -3 0 1 1 -3 0 1। तो ये भी ट्रिक है, इस ट्रिक से भी कर सकते हो। ठीक, तो मिस्टेक नहीं करना, कोई भी मेथड फॉलो करो। तो वी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we get B inverse A inverse equal to, this will be how much, 2 minus 0, that is 2 only, here -3 plus 0, that is -3, here -6 -1 -7 -3 into -3 plus 9 plus 2 11. So therefore B inverse A inverse equal to this matrix, and let it be equation number 4. So we see that now from equation 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 में क्या था, ए बी होल इनवर्स, यही मैट्रिक्स आया था सेम टू सेम इक्वेशन 1। यहाँ पर अगर देखना चाहते हो तो चल के देख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 ये देखो, 2 -3 -7 11, दिस इज ए बी होल इनवर्स। और अभी जो मैट्रिक्स मिला अपने को वो भी कौन सा मैट्रिक्स है, देखो 2 -3 -7 11। So now from equation 1 and 4 you can say AB whole inverse equal to B inverse A inverse, hence verified या hence proved। तो ये अपना वेरीफाई हो गया और ये फार्मूला भी है, तो दिस इज ट्रू ऑलवेज, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं। अभी हमने प्रूफ करके देख लिया और इस फार्मूला को याद भी रखना है, बहुत सी जगह पर ये काम भी आएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ये समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हो तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। इफ A equal to 4 5 2 1 means matrix A equal to this much, then show that A inverse equal 1/6 into A minus 5i। यहाँ पर I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 means 2 rows 2 columns। For this proof, since A equals 4 5 2 1, therefore determinant of A, first we find the determinant। क्यों फाइंड करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 -5 इंटू 2 4 -10 इक्वल्स -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। क्योंकि डायरेक्टली डेट ए इक्वल टू निकाल सकते हो या उसको डिटर्मिनेंट में लिखो। ये लिखने के बाद ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब इसके बाद यू हैव 3 मेथड्स, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडजॉइंट मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एडजॉइंट मेथड यूज कर लिया है, क्योंकि भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से सभी क्वेश्चंस को उधर ऊपर सॉल्व कर दिए। तो ये एडजॉइंट मेथड से कर लेते हैं। देखो, तो एडजॉइंट मेथड से हमें क्या करना है, इनके को फैक्टर्स निकालने हैं। तो को फैक्टर्स आर, फर्स्ट वन a11 इक्वल्स -1 रेज टू 1 + 1 इंटू, देखो 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डू नॉट टेक, डू नॉट राइट, क्या बचेगा 1, तो 1 लेते हैं यहाँ पर। तो -1 रेज टू 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। ठीक, a11 1, a12 -1 रेज टू 1 + 2 इंटू 2, ऐसे ही यहाँ पर 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नहीं लेना है, तो 2 आ जाएगा यहाँ, और ये माइनस ये प्लस तो -2, a21 -1 रेज टू 2 + 1 इंटू हाउ मच 5, तो ये हो गया -1 इंटू 5 दैट इज -5। a22 -1 रेज टू 2 + 2, तो ये +1 हो जाएगा इंटू 4 दैट इज +4। ये अपने 4 को फैक्टर्स मिल गए सभी, a11 a12 a21 a22, राइट। तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल a11 a12 a21 a22, ये फार्मूला है। ये क्या है, एडजॉइंट ए का फार्मूला, किस ऑर्डर में लिखना होता है फार्मूला यहाँ पर दे दिया हूँ। ठीक है, इक्वल्स, अब इनके वैल्यूज एंट्री कर देते हैं, 1 -2 -5 4। ठीक है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, किसका फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हमने माइनस भी नहीं फाइंड किया, माइनस की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली को फैक्टर लिख सकते हो। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस मच मिल गया। What is the formula for A inverse? Since A inverse equal to 1 upon determinant of A 1 upon det A into adjoint of A। तो det A का वैल्यू क्या था, -6, तो therefore it is equal to
1 upon minus 6 into adjoint of a same matrix 1 minus 5 second row minus 2 4 minus 2 4 and let it be इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना था, a माइनस 5i, a माइनस 5i जो अपना राइट हैंड साइड का वैल्यू है। तो सिंस a माइनस 5i इक्वल टू मैट्रिक्स a माइनस 5 टाइम्स i, तो 5005 ये हो जाएगा, क्योंकि 5 बाहर लिखोगे 1001 होता है, लेकिन 5 से अंदर मल्टीप्लाई करो फिर तो क्या हो जाएगा 5005, ये 5i का वैल्यू है। अब इसके बाद देखो 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 0 5, 2 minus 0 2 and 1 minus 5 becomes minus 4 and let it be equation number 2. So we see that these two matrices are same। ये देखो 1 और 2 में क्या मिलता है, यहाँ 1 minus 5 minus 2 4, यहाँ भी यहाँ पर minus 1 5 2 minus 4, बट अपोजिट इन साइन, और साइन यहाँ पर क्या है चेंजेस है। तो अपना जो मैट्रिक्स यहाँ पर आने वाला है, देखो इसमें है माइनस साइन 1 अपॉन माइनस 6, क्या है 1 अपॉन माइनस 6। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे ये दोनों। अगर ये सिर्फ माइनस साइन का मल्टीप्लाई यहाँ करो क्या होगा, -1 + 5 + 2 -4, तो सेम हो गया कि नहीं, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा 1/6। तो देयरफॉर a इनवर्स इक्वल टू 1/6 इनटू, फिर ये किसका वैल्यू हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ a माइनस 5i, है कि नहीं। हमने माइनस साइन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। एक स्टेप लिख लेना डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दो यहाँ पे, एक स्टेप और यहाँ पर आगे बढ़ा दोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो। ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना, एक स्टेप यहाँ इक्वल टू करके आगे लिखना है 1/6 इंटू मैट्रिक्स -1 5 2 -4, मीन्स यही मैट्रिक्स यहाँ पर लिखना है 1/6 के साथ, ये 1/6 बाहर रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करना, तब ये दोनों सेम दिखेंगे। तो 1/6 एज इट इज लिखोगे, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी जो यहाँ पर मैट्रिक्स लिखोगे, इसकी फ्रॉम इक्वेशन 2, वो वैल्यू किसकी है a माइनस 5i, वो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 a इनवर्स इक्वल टू 1/6 इंटू a माइनस 5i, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट आज के लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो समझने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लीव योर कमेंट, लीव योर डिफिकल्टीज इन द कमेंट बॉक्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।